This is your previous year question. Means probability of x is equals to 2 is equals to 2 by 3. Probability of x equals to 1. Find the probability of x equals to 3. Poisson distribution lambda is and Poisson variate lambda. We know that probability of R success, that is Poisson distribution का PDF क्या होता है? Probability of R success का मतलब R success का क्या होता है? That is for e to the power minus lambda, lambda के power R upon factorial R. This is known as factorial R. Okay. तो 2 success के लिए फॉर्मूला क्या होगा? एक R की वैल्यू हम पुट कर देंगे 2. Then probability of x is equals to 2 is equals to e के power minus lambda, lambda square upon 2 factorial. Probability of 1 success, that is probability of x equals to 1, so e के power minus lambda into lambda के power 1 upon 1 factorial. Now put the value. तो given क्या है? Probability of x equals to 2 equals to 2 by 3 probability of x equals to 1. Put the value. Probability of x equals to 2 की वैल्यू क्या है? e के power minus lambda into lambda square upon 2 factorial equals to 2 by 3. Probability of x equals to 1 की वैल्यू क्या है? e के power minus lambda, lambda upon 1 factorial. e के power minus lambda, e के power minus lambda cancel out. Lambda से lambda square cancel out, that is lambda बचा. तो lambda is equals to 2 by 3 into 2 factorial, that is 2. So lambda is equals to 4 by 3. Probability of x equals to 3. If I'm saying x equals to 3, then probability e के power minus lambda x की वैल्यू 3 पुट करी, r की वैल्यू 3 पुट करी, तो क्या होगा? e के power minus lambda, lambda cube upon 3 factorial. We know that lambda equals to 4 by 3. Then put the value. Then lambda equals to 4 by 3. I put that. So e के power minus 4 by 3 upon 6. 3 factorial. We can write that 6 into 4 by 3 के power 3. Understood? That with this can be written as 4 का cube, that is 64 upon 3 के power 4 into 6. This is your answer. Means if you are ये आपको previous year question है. Understood है? आप examination previous year exam paper देखना. That means I think it's 7.5 marks का question था. कि Poisson variate, sometimes lambda is called Poisson variate, sometimes it's called mean of Poisson distribution. ठीक है? Because we know that the mean of Poisson distribution is lambda and variance of Poisson distribution is also lambda. तो sometimes Poisson distribution का mean given होता, that means lambda given है. अगर ये पूछता कि probability of x equals to 2 equals to 2 by 3 probability of x equals to 1, find the probability of x equals to 3 and mean of Poisson distribution, तब भी आपको lambda की वैल्यू फाइंड करनी थी. Understood है? Okay. Now another question. One note, that is mu1 equals to mu2 equals to mu3 is equals to lambda. Means first mu1 equals to mu2 equals to mu3 equals to lambda, and mu4 is equals to lambda plus 3 lambda square. mu4 is equals to lambda plus 3 lambda square. Suppose that on an average one house in 1000 houses gets fire in a year in a district. If 2000 houses in the district, find the probability exactly 5 houses gets fire during that year. Means क्या है? जैसे एक सोसाइटी है, सपोज दैट देयर इज एन सोसाइटी, तो उसमें 1000 हाउसेस हैं, तो ऑन एन एवरेज वन हाउस गेट्स फायर इन अ ईयर, बट देयर आर 2000 एक डिस्ट्रिक्ट होगा जिसमें 2000 हाउसेस हैं. ठीक है? तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, दैट मींस गेटिंग एग्जैक्ट 5 houses gets fire during that year. Okay, we know that the probability of getting fire is equals to how many houses getting fire? 1 houses out of 1000, so 1 upon 1000. How many houses are there? So n equals to 2000. Because we know that if n is large and p is small, तब हम क्या करते हैं? lambda equals to np. This is a case of limiting case of Poisson distribution. n large होना चाहिए और p क्या होना चाहिए? small होना चाहिए. 2000 into 1 upon 1000, तो lambda की वैल्यू क्या होगी? 2. तो r की वैल्यू क्या है? That means r की वैल्यू क्या होगी? Means 5 success, that probability of 5 success e की power minus 2 into 2 की power 5 upon 5 factorial. Now the distribution of the number of road accident per day in a city is a Poisson distribution. With mean 4, find the number of days out of 100 days when there will be no accident. At least 2 accident, at most 3 accident, between 2 to 5 accident.
between 2 to 5 accident. Between 2 to 5 accident. Okay, because the distribution is Poisson distribution. Okay, then lambda की वैल्यू कितनी है 4, and put the value lambda की वैल्यू 4 है, lambda is equals to 4 and n is equals to 100, means आपको एवरेज 4 एक्सीडेंट इन अ डे है, तो 100 डेज में पूछा गया था, 10 की वैल्यू 100 लेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस दैट इज e के पावर -4 into 4 के पावर r अपॉन r फैक्टर, मींस अगर 0 एक्सीडेंट इन अ डे, तो इसका मतलब e के पावर -4 into 4 के पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा e के पावर -4, बट दिस कैन बी रिपीटेड इन 100 डेज, तो क्या होगा 100 का मल्टीपल हो जाएगा. अरे हमने जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में किया था कि अगर कोई भी प्रोसेस n टाइम, अगर वो ग्रुप जो है ना n टाइम से रिपीट हो, तो वो क्या करेंगे कैपिटल N का मल्टीपल कर देंगे. तो यहाँ पे अगर 100 डेज का होगा, ये एक दिन का है कि एक दिन में कोई भी एक्सीडेंट ना हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा e के पावर -4. अगर 100 डेज में ना हो तो 100 का मल्टीपल e के पावर -4 की वैल्यू होती है, दैट इज 0.183, सॉरी 0.0183. तो 100 का मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा 1.83. अंडरस्टूड है? ओके, नाउ अनदर वन इज at most 2x, at least 2 accident, there will be no accident, ये अलग हो गया. 100 डेज में at least 2 accident, तो पहले हम निकालेंगे at least 2 accident एक दिन का, फिर 100 का मल्टीपल कर देंगे. at least 2 accident, what is new? At least 2 accident, यानी कि either 2 accident are greater than 2, that means at least 2 का मतलब probability of x greater or equals to 2, means at least 2 का, अगर मैंने if anybody ask 50% mark, at least 50% marks, तो 50% are more than 50%, तो at least 2 का मतलब 2 are greater than 2, तो क्या होगा 1 minus probability of x less than 2, which can be written than 1 minus probability of x equals to 0 plus probability of x equals to 1. Now probability of x equals to 0 पे क्या होगा e के पावर -4 into 4 के पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल. अंडरस्टूड है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 पे क्या हो जाएगा e के पावर -4 4 के पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल. व्हेन वी सॉल्व दिस वन, बिकॉज़ e के पावर -4 की वैल्यू क्या होती है 0.0183 और ये क्या होगा 4, तो ये हम कर लेंगे. अच्छा, अगर ग्रेटर देन 2 है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2, तो हमने रख दिया वैल्यू, e के पावर -4 हो जाएगा प्लस 4 into e के पावर -4, तो हम लिख सकते हैं 1 - 5 e के पावर -4. अंडरस्टूड है? अगर ये प्रोसेस ये एटलीस्ट 2 एक्सीडेंट कितने दिन है, ये पर डे के, तो मुझे कितने दिन बचिए 100 डेज पे, 100 का मल्टीपल कर देंगे, तो 1 - 5 e के पावर -4 का जब मल्टीपल करेंगे दैट विल बी 90.85. तो अगर हम उसके अभी परसेंट्स है तो परसेंटेज तो है नहीं, तो कितने परसेंट हो जाएंगे, आइदर यू कैन राइट 90 और 91, बिकॉज ये 0.8 से बड़ा 0.5 से बड़ा है, तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज 91 एक्सीडेंट एट 91 डेज. ऐसा होगा कि पर 91 डेज ऐसा होगा कि एटलीस्ट 2 एक्सीडेंट हो गए. अंडरस्टूड? ओके. प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल्स टू 3 मींस एट मोस्ट 3 एक्सीडेंट, एट मोस्ट 3 एक्सीडेंट मतलब मैक्सिमम 3 एक्सीडेंट, या तो 0 एक्सीडेंट, या तो 1 एक्सीडेंट, या तो 2 एक्सीडेंट, या तो 3 एक्सीडेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 आल्सो. ओके, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ बट यहाँ पे भूल गया थोड़ा सा. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3, अगर एट मोस्ट 3 का, या तो 0 एक्सीडेंट, कोई भी एक्सीडेंट ना हो, या तो 1 एक्सीडेंट हो जाए, या तो 2 एक्सीडेंट हो जाए, या तो 3 एक्सीडेंट. तो 0 एक्सीडेंट के लिए 4 to the 0 e की पावर -4 अपॉन 0 फैक्टोरियल, 1 एक्सीडेंट 4 की पावर 1 e की पावर -4 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 2 एक्सीडेंट 4 स्क्वायर e की पावर -4 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 एक्सीडेंट 4 क्यूब प्लस e के into e की पावर -4 अपॉन 3. नाउ पुट द वैल्यू, दिस इज e की पावर -4, 4 e की पावर -4, 16/2 that is 8, तो 13 e की पावर -4 प्लस दिस इज 4 3 64 by 6, तो 6 से 2 cancel, that is 32/3 e के पावर -4. This process can be repeated 100 days, तो 100 का मल्टीपल 13 e के पावर -4 प्लस 32/3 e के पावर -4. अंडरस्टूड है? अच्छा बताओ, 13 प्लस 32/3, दैट मींस जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3,
तो 13 into 3 39 plus 32 that is 71 e की पावर -4/3. तो 100 into 71 by 3 into 0.0183 this is the value of e की पावर -4. that means क्या होगा 0.061. अंडरस्टूड? ओके, जब हम मल्टीपल करेंगे तो 0.61 into 71 तो आंसर कितना आएगा 43.31. 43.31. अगर आपकी कॉपी में किसी ने गलत लिखा हुआ है जब हमने क्लास में करा था ये 43.31 होगा सर. तो कितने दिन ऐसे होंगे जब एटमोस्ट 3 एक्सीडेंट होंगे? 43 डेज ऐसा होगा जब एटमोस्ट 3 एक्सीडेंट होंगे. अंडरस्टूड? ओके, नाउ लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन. सो आपको मैंने कॉपी में मैं जब क्लास कर रहे थे तब हमने क्वेश्चंस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के 2 टाइप के और करे थे. एक हमने करा था कि कॉल सेंटर वाला करा था. एक हमने कि एक ट्रैफिक लाइट है यहाँ से इतने व्हीकल्स क्रॉस हो रहे हैं तो उसका एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था. एक हॉस्पिटल में नंबर ऑफ पेशेंट आने का कि 0 आवर 1 आवर में इतने पेशेंट आते हैं, 2 आवर में पर डे इतने पेशेंट आते हैं, तो इतने आवर में कैसे, वो एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा. ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कॉपी में करवा रखे हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवा दिए. अंडरस्टूड? ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज least square approximation. Means why we are doing least square approximation? If you are having a function, अगर आपके पास फंक्शन है f of x that is e की पावर -3x something like that. अगर आपके पास कोई फंक्शन है एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक और एनी फंक्शन, अगर आपके पास डिस्क्रीट डेटा, अगर आप पहले हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं. लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन अप्लाइड इन 2 केसेस. वन इज डिस्क्रीट डेटा, अनदर वन इज कंटिन्यूअस फंक्शन. अंडरस्टूड है? अच्छा, अगर हम डिस्क्रीट डेटा की बात करें, हम डिस्क्रीट डेटा पे ही काम करेंगे, अभी कंटिन्यूअस पे बात बताएंगे. अगर हम डिस्क्रीट डेटा पे काम करें, दैट मींस इफ यू आर परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट, जैसे कोई आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो कि आप एक, जैसे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है या केमिकल में है कि आप जैसे टाइट्रेशन करते हो, यू आर डूइंग अ टाइट्रेशन. तो टाइट्रेशन में क्या होता है कि अगर आपने 1 ml एल्कोहल डाला तो रीडिंग कुछ अलग आएगा, अगर आपने 1.1 ml अल्कोहल डाला तो रीडिंग कुछ अलग आएगा, दूसरा रीडिंग है. जैसे सपोज दैट 1 ml अल्कोहल पे आपका जो सपोज दैट हम इलेक्ट्रिकल कर रहे थे, बिकॉज आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट केमिस्ट्री राइट नाउ, तो हम एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का एग्जांपल लेते हैं कि इफ यू आर हैविंग अ मींस जैसे वोल्टोमीटर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी व्हेन वी प्रोवाइड करंट, तो जब हम करंट प्रोवाइड करते हैं तो जब जैसे 200 एम्पियर करंट रखा या 100 एम्पियर करंट रखा तो उस पर वोल्टेज डिफरेंट आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस लगाते हैं. तो हम करंट को तो इंक्रीज करेंगे बट रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखेंगे, उससे वोल्टेज पे चेंजेस आएंगे. तो जब हम ग्राफ ड्रा मींस उसका हम रिलेशन निकालेंगे, तो हम उसे उसके फॉर्म में, पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में लिखेंगे. बिकॉज अगर आपके सपोज दैट आपका 100 एम्पियर पे आपका कुछ करंट वोल्टेज आ गया, 100 एम्पियर पे आपका कुछ वोल्टेज आ गया, करंट आ गया, समथिंग कुछ भी आपका, जैसे 3.2, 200 पे 6.4, 500 पे 7.1, समथिंग लाइक दैट. अगर ऐसा आपका करंट आ गया तो आपका एक डेटा क्रिएट होगा, तो जो इंक्रीज करेंगे वो होगा x और जो आउटपुट होगा उसे मान लेंगे f of x. अंडरस्टूड है? अगर हमने उसको माना तो हमें उसको ग्राफ ड्रा करना होगा, तो ग्राफ ड्रा करने के लिए एक फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी. ओके, दैट टाइप ऑफ अप्रोक्सीमेशन इज कॉल्ड, जो मेथड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन. अच्छा, हमने माना कि f of x भी n डायमेंशनल डेटा, तो f of x अगर n डायमेंशनल है तो हम वी कैन राइट दैट an x के पावर n प्लस an minus 1 x के पावर n minus 1 दैट इज a नॉट, समथिंग लाइक दैट. दिस इज i, और ये f of x एक फंक्शन होगा, जैसे डिस्क्रीट डेटा का एक डेटा गिवन होगा. हम क्वेश्चन करेंगे वहां समझ में आएगा. आप ये ले लो कि i इक्वल टू समेशन f of x माइनस r इक्वल टू 0 टू a r x की पावर r, ये आपका एक पॉलिनोमियल है का होल स्क्वायर. व्हाई वी आर डूइंग स्क्वायर? बिकॉज अगर ये एरर है मींस f of x से दिस इज एग्जैक्ट डेटा एंड दिस वाज अप्रोक्सीमेट. व्हेन दिस इज वन इज एरर,
तो एरर को जब हम, एरर तो लेस देन 1 होगी, और लेस देन 1 को जब हम स्क्वायर करेंगे, दैट मींस दिस एरर रिड्यूसेस, और एरर को हम वी कैन मिनिमाइज, एरर को मिनिमाइज करते हैं, दैट मींस आई इज मिनिमम। सिंपल ये फॉर्मूला है, आई इक्वल टू समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस आर इक्वल टू 0 टू n ए आर एक्स के पावर आर का होल स्क्वायर। दिस इज मिनिमम, बिकॉज वी नो दैट इफ अगर हमें किसी को मिनिमम करना है तो उसका अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज अ मिनिमम, तो मिनिमम प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव उसको क्या करना करता है, उसको 0 रखना पड़ता है। दैट मींस डेल आई बाई डेल आर, डेल ए आर इक्वल्स टू 0। दैट मींस समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस आर इक्वल्स टू 0 टू n ए आर एक्स के पावर आर इनटू एक्स के पावर आर। तो अगर, बिकॉज अगर मैंने ए आर के रिस्पेक्ट में किया, आई एम डिफरेंस, it's a partial differentiation with respect to AR. If I'm differentiating partially with respect to AR, so the f of x treated like a constant, तो इसका 0 हो जाएगा, माइनस समेशन की तो कोई बात नहीं, a नॉट a1 a2 a3। अच्छा AR जहां पे मिलेगा उसका कोफिशिएंट क्या होगा, x के पावर r, तो x के पावर r आ जाएगा, और यहाँ पे 2 भी आएगा बिकॉज स्क्वायर है, तो वो g2 0 के साइड जाएगा तो 2 खत्म, एंड हो जाता है। दैट मींस दिस कैन बी रिटन एज summation x के पावर r f of x minus summation x के पावर r, this is summation x के पावर r, now bracket this summation x summation ar x के पावर r for discrete data। और कंटिन्यूअस के केस में क्या होगा, यहाँ पे हम जहां पे समेशन यूज करते हैं यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन 0 to 1 और व्हाटएवर विल बी। अंडरस्टूड है? आपके सिलेबस में सिर्फ आई थिंक डिस्क्रीट का आता है, कंटिन्यूअस का नहीं है, आई विल चेक अगेन, तो फिर हम कर देंगे। अगर कंटिन्यूअस का होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फॉर अ लीनियर फिट, अगर ये डेटा होगा आपको लीनियर इक्वेशन में फिट करना, तो लीनियर इक्वेशन होती कैसे है, दैट इज a1x प्लस a नॉट टाइप, देन आई मिनिमाइज, आई को मिनिमाइज करना है, दैट इज समेशन ऑफ f of x माइनस a1x प्लस a नॉट का होल स्क्वायर। आई को मिनिमम करना है, दैट मींस del i by del a not equals to 0 and del I by del a1 equals to 0। तो because 2 variables then again 2 times differentiate, अगर 3 variables होते तो 3 times differentiate करते, del I by del a naught, del I by del a1, del I by del a2, because 2 variable, so we can when we differentiate it, because it's a minimum value, so del I by del a naught equals to 0 is equals to 2 into summation of f of x minus a1x plus a naught into, because a naught के रेस्पेक्ट में दैट इज a naught का कोफिशिएंट क्या होगा, -1, तो 2 into -1 -2 अगेन दिस इज अ कांस्टेंट, ये तो 0 होगा नहीं, मींस दिस वन इज कांस्टेंट, दिस इज 0, ये जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। समेशन f of x माइनस समेशन a1x प्लस a naught, समेशन f of x ले जाओगे दूसरे साइड, अगेन टेकन ऑन अनदर साइड, तो f of x समेशन a1 x के पावर r xr प्लस a naught समेशन 1 हो जाएगा, बिकॉज a naught एंड a1 आर कांस्टेंट, a1 बाहर आ जाएगा, समेशन xr प्लस, दिस कैन बी एट टू n डेटा, अगर n डेटा हुआ तो n टाइम्स होगा, तो n a naught हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली फॉर सेकंड इक्वेशन, del I by del a1 a1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वल्स टू 0 होगा, 2 into summation of f of x minus a1x plus a naught, and a1 का कोफिशिएंट क्या है, that is -1 minus x, because I am partially differentiating with respect to a1, तो minus x आ जाएगा। जब हम मल्टीपल करेंगे तो बनेगा x into f of x is equals to a1 sigma x square, because यहाँ पे क्या है, x है और ये x square हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x a naught sigma x। फॉर फिट अ क्वाड्रेटिक कर्व, अगर मैंने क्वाड्रेटिक कर्व की बात करी तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन f of x माइनस a naught a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a naught का होल स्क्वायर।